चलिए बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। और हम वही सर्किट जो है इस्तेमाल करने जा रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रूव दैट वी कैन यूज दिस ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर एज वेल। नाउ बिफोर आई गो इनटू द टॉपिक, आई वुड लाइक यू पीपल टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ एन ऑसिलेटर, ठीक है। नाउ ऑसिलेटर की बात करें, व्हाट इज एन ऑसिलेटर? शाबाश, you have already discussed in class 11, you have already discussed oscillations, जिसमें आपने देखा there it is a periodic to and fro motion about a mean position, mean point. Say for example, आपके पास एक पेंडुलम है। ये पेंडुलम जो है, ये अगर इसकी मीन पोजीशन है तो आप अगर इसको एक्सट्रीम पे ले जाएं, यहाँ पे it will try to come back towards its mean position, but while coming back to its mean position, what will happen? It will overshoot and reach to the other extreme. And then again it will try to come back to its mean position, and then again it will overshoot. Now you will see that when it covers this complete cycle from its first mean position to another mean position, you will see that it will take some time, and then you will also see that it is going between the two extremes through this midpoint, and you will call this motion as a simple periodic motion or a simply an oscillation. इसी तरह से आपने एक और एग्जाम्पल भी पढ़ी होगी। आपने एक स्प्रिंग में कोई मास जोड़ा होगा, ठीक है। मास जोड़, तो ये तो स्टेबलाइज स्प्रिंग है, ठीक है। आप क्या करने जा रहे हैं? यू विल एक्सर्ट सम फोर्स जिसकी वजह से नीचे आएगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई, एंड व्हेन यू विल रिलीज दैट फोर्स इट विल ट्राई टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल, लेकिन अगेन इट विल ओवरशूट ड्यू टू restoring forces in the spring, जिसकी वजह से it will reach the other extreme, and then again it will go to and fro about this mean position, ठीक है। Again you will call this motion as an oscillatory motion, ठीक है। So oscillatory motion is simply a to and fro motion, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह through some mean path your body is going, ठीक है। इसी तरह से in case of electrical circuits, when you will go through the transient currents, you will go through the AC circuits, you will see that we have a combination of an inductor along with a capacitor, connected in parallels, यानी कि आपके पास कुछ ऐसा होगा। आपके पास एक इंडक्टर होगा, ठीक है, आपके पास एक कैपेसिटर होगा, ठीक है, and you will be connecting them in parallels, ठीक है ना। Now, this inductor is simply a load represented by L, and this capacitor electrostatics पे हमने पढ़ा है, this is both of these devices, they are charge storing, both can store charge, ठीक है। कैपेसिटर भी चार्ज को स्टोर कर सकता है, इंडक्टर भी चार्ज को स्टोर कर सकता है। और आपने शायद पढ़ा होगा कैपेसिटर stores energy in the form of electric field, and the expression for that energy is given by half of shabash CV square, or you have written half of Q square by C, or you have also said about the energy density of the capacitor, which is equal to half of epsilon naught E square, ठीक है ना। इसी तरह से जब आप इंशाल्लाह इंडक्टर्स की बात करेंगे, जब आप एसी सर्किट्स में जाएंगे, तो आप देखेंगे इंडक्टर भी ऐसा ही कोई डिवाइस, ठीक है। नाउ दिस सर्किट इज एक्चुअली एन एलसी सर्किट। कौन सा सर्किट है? एलसी सर्किट, where L stands for the load or the inductor, and capacitor C stands for the capacitor, ठीक है। Now inductor जो है, again इसके पास भी क्षमता ये है कि एनर्जी स्टोर कर पाएगा, ठीक है। अब एनर्जी जो ये स्टोर करता है, that is given by half of Li square, where L is called as the coefficient of self inductance. Now this L has a very significant value because it is actually the inertia of electricity under the concept of self-inductance. Now, inshallah, जब आप AC circuits में जाएंगे, you'll see there's a concept of self-induction. मैंने पिछले lectures में, अगर आपको याद होगा, मैंने जिसने rectification पढ़ाया था, half wave rectification, full wave rectification, मैंने कहा था कुछ concept है, दो coil जुड़ी हुई है तो mutual induction हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे L, this is the coefficient of self-induction, or you can say it is the inertia of electricity under the concept of self-inductance, ठीक है। इसी तरह से जब दो कॉइल्स होती है, देयर हैज टू बी सम कोएफिशिएंट कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन कांसेप्ट, एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस M, that is represented by M, that it is again the inertia of electricity under the concept of mutual inductance, ठीक है। जब आप वो पढ़ेंगे तब इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अभी याद रख लो कि half of Li squared, it is the energy stored by the inductor, यानी कि energy is directly proportional to I square, and यहाँ पर कैपेसिटर में the energy depends on the charge stored,
ठीक है, चार्ज कितना स्टोर है. And when you talk about the energy density of an inductor, you'll see that the expression for the energy density is half of b square upon mu naught, where mu naught is the permeability of the material. ठीक है. Now you're seeing that inductor जो है, it stores energy in the form of magnetic field, and your capacitor, it stores energy in the form of electric field. ठीक है. Now when you're connecting this इंडक्टर विद अ फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट. जब आपने एक कंप्लीटली चार्ज कैपेसिटर को जोड़ा किसके साथ, एक इंडक्टर के साथ. ठीक है ना. प्लेट, जब एक कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होता है तो आपने पढ़ा होगा एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक प्लेट जो होगा दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज. तो मैं अगर दिखाना चाहूं तो मैं ये दिखा सकता हूं कि आपका कैपेसिटर जो है वो कुछ ऐसे होगा. ठीक है, ठीक है. Now therefore when this fully charged capacitor is connected with an inductor, what is going to happen? शाबाश. Obvious सी बात है, this capacitor will start to discharge, and discharging की वजह से what is going to happen? It will allow the conventional currents in this direction, and जिसकी वजह से आप देखेंगे, समझना मेरी बात, when the capacitor was completely charged, इसके पास एनर्जी जो थी वो थी half of q squared by c, or the energy was stored in the form of electric field, and the electric field was from positive plate towards the negative plate. ठीक है कि नहीं? So energy, the storage of energy effectively and efficiently in the form of electric field is called as capacitance. ठीक है. Now जब एक कैपेसिटर, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को आपने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, एक इंडक्टर के साथ, आप ये देखेंगे कि ये कैपेसिटर जो है, जो इस पे चार्ज स्टोर्ड है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगा. The charge stored on the capacitor will start to decrease, and due to which the currents in the circuit will start to increase. यानी कि ये करंट जो है ये इंक्रीज होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी, इंक्रीज होने की लगेगी. इसका मतलब the current flowing through this inductor, जो आपके पास हीटर की कॉइल घर पे होती है, ठीक है ना, वैसी कॉइल जो होगी, उस कॉइल में आप ये देखेंगे करंट्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होने लगती. इथे जो याद दिखा, अपने घर पे हीटर होगा, आपने स्विच ऑन किया, ठीक है, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद आप देख रहे हैं बहुत टाइम के बाद वो कंप्लीट रेड हॉट हो जाता है. ठीक है ना, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस तो आपने अप्लाई किया, लेकिन करंट्स इकट्ठे फ्लो नहीं हुए. सो रिमेंबर दिस थिंग, इन केस ऑफ एन इंडक्टर द करंट it actually lags behind the voltage by a phase difference of pi by 2. ठीक है, ये pi by 2 फेज डिफरेंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बेटा? इंशाल्लाह एसी जब पढ़ोगे तब समझ आ जाएगा. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इंडक्टर है इसमें करंट्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है. ठीक है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस तो पहले ही अप्लाई किया होगा, लेकिन इंडक्टर जो है इसमें करंट्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है. ठीक है, और अगर आप कैपेसिटर की बात करेंगे, ये बात भी याद रखें कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में वोल्टेज जो है वो लीड करता है, वोल्टेज जो है वो लैग करता है बिहाइंड करंट. वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट. ठीक है, बाय फेज ऑफ पाई बाय 2. ये आप याद रखें, ये आपको समझ आ जाएगा जब एसी सर्किट्स में आ जाएंगे, ट्रांजिएंट करंट जब आप पढ़ेंगे. ठीक है, तो करंट in case of an inductor it lags behind the voltage by a phase difference of pi by 2. और आप वोल्टेज की अगर बात करें, इन केस ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज ही पीछे रहता है लेकिन करंट पहले चल रही होती है. वो क्यों? क्योंकि वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है. ठीक है, लेकिन करंट पहले ही फ्लो हो रही होती है. ठीक है कि नहीं? सो इन केस ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज पीछे रहता है करंट से, और इन केस ऑफ इंडक्टर इनकी प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट इन केस ऑफ एन इंडक्टर इट इज द करंट which lags behind the voltage. ठीक है. नाउ अब ये क्यों होता है, उसकी वजह वही सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है, वो इंशाल्लाह आप समझ लेंगे. नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट. मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर आपने एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर लिया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दिस कैपेसिटर विल स्टार्ट टू डिक्रीज इट्स चार्ज, एंड ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ द चार्ज द करंट्स विल स्टार्ट टू इंक्रीज. The currents will start to increase, यानी कि करंट जो है ये इंक्रीज होने लगेगी, and these increasing currents when they'll flow through the inductor, what is going to happen? The inductor, which has this energy formula half of Li square, because the currents are increasing, you're seeing that the energy stored in the inductor in the form of magnetic field
will start to increase and increase, ठीक है। यानी कि चार्ज घट रहा है लेकिन करंट्स बढ़ रही है, और मैं ये कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, एनर्जी घट रही है किसकी, कैपेसिटर की, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द इंडक्टर इज इंक्रीजिंग। समझ गए कि नहीं? तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि जो कंप्लीटली चार्ज कैपेसिटर था ये कुछ ऐसे हो जाता है, इसमें कुछ ऐसा शिफ्ट आएगा, ये चार्ज कैपेसिटर अब न्यूट्रल हो जाएगा, और तब करंट जो जब अब देखो चार्ज घट रहा है, करंट बढ़ रही है, तो जब चार्ज हो जाएगा जीरो, आपकी करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। Therefore you will have maximum currents running through the circuit, and when your currents will be maximum, your capacitor will be neutral, but your energy stored in the form of magnetic field will be maximum, because current is maximum, magnetic field will be maximum. By the formula, magnetic field inside a coil, inside a solenoidal coil, it is equal to mu naught n times I, where mu naught is the permeability, n the number of turns per unit length of the coil, ठीक है, and I the current flowing. Now because the current is maximum, your magnetic field will be maximum, and when this is maximum, your energy stored in the capacitor, in the inductor will be maximum. कहने का मतलब ये है कि जो आपका कैपेसिटर, यहाँ पे कैपेसिटर का डब्बा जिसमें एनर्जी स्टोर थी, ये डब्बा था, इट वाज फुली चार्ज, ठीक है। लेकिन इस वाले केस के बाद जब ये करंट अब मैक्सिमम होने लगी, चार्ज जीरो होने लगा, आप देखोगे कि जो इंडक्टर का चार्जिंग डब्बा है वो डब्बा मैक्सिमाइज हो गया, ठीक है कि नहीं? तो आप क्या देख रहे हो, पहले एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब वो एनर्जी चेंज हो गई इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, तो बेटा समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा था, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपको मैं दिखा लूं, आप मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ करंट पे चले जाएंगे, आप देखेंगे कि जब करंट किसी लूप में चलती है ना, इसके पास प्रॉपर्टी होती है दैट इट विल प्रोड्यूस अ पोल, इट विल प्रोड्यूस अ पोल, से द करंट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। यू आर सीइंग दैट अ साउथ पोल विल जनरेट, ठीक है, एंड अगर करंट चल रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, द पोल दैट विल गेट जनरेटेड विल बी द नॉर्थ पोल। ये भी समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ करंट से, ठीक है। तो देयरफॉर दिस विल बी द साउथ पोल, दिस विल बी द नॉर्थ पोल, एंड आपको पता होनी चाहिए दैट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट run from south pole to the north pole, and from the outside they run from north pole to the south pole। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो ऐसे इंक्रीज होने लगेगी। समझ रहे हो कि नहीं, समझ गए कि नहीं? सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैक्सिमाइज होगा, यहाँ वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन यहाँ वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो। समझ गए कि नहीं? ओके ना, इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद जब ये इंडक्टर कंप्लीटली चार्ज हो जाता है, जब इस इंडक्टर में एनर्जी मैक्सिमाइज हो जाती है, तो ये इंडक्टर, अब इसमें जो करंट्स फ्लो हो रही है वो तो कांस्टेंट करंट्स आ गई, उस कांस्टेंट करंट की वजह से जो एक कैपेसिटर है, अब ये कैपेसिटर आगे नए से स्टार्ट चार्ज होना हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? और कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए करंट्स अभी तक ऐसे फ्लो हो रही थी, therefore these currents will decrease and therefore the reverse currents will increase, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाती है। समझ गए कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि अब अभी तक पहले वाले केस में चार्ज घट रहा था और करंट बढ़ रही थी, लेकिन अब क्या होगा, अब करंट्स घटने लगेगी। करंट्स घटने का मतलब, समझना मेरी बात, करंट्स घटने का मतलब जो करंट अभी तक इस डायरेक्शन में चल रही थी अब इस डायरेक्शन में नहीं चलेगी, अब वो करंट्स इस डायरेक्शन में डिक्रीज होगी, यानी कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होने लगेगी, यानी कि जो अब इंक्रीजिंग करंट्स होगी वो होगी ये वाली आई न्यू, आई डैश में लिखा, ठीक है। अब नई करंट जो होगी दे विल फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बिकॉज दे हैव टू चार्ज द कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज करना है, कैपेसिटर को चार्ज करने का मतलब, अब देखो ये वाली करंट किस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में, कहने का मतलब ये इस वाली डायरेक्शन में, देयरफॉर अब कैपेसिटर के इस वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कैपेसिटर के इस वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? यानी कि हमारा अब करंट घट रही है, लेकिन अब कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो बढ़ रहा है, लेकिन इस चार्ज को बढ़ने की क्षमता इस तरह से है कि इसकी पोलैरिटी जो है वो हो रही है रिवर्स। समझ गए कि नहीं? तो पोलैरिटी क्या हो रही है? पोलैरिटी हो रही है रिवर्स, बिकॉज द करंट्स आर डिक्रीजिंग इन द एक्चुअल डायरेक्शन और दे आर इंक्रीजिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ गए कि नहीं? जिसकी वजह से अब आपका कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर का डब्बा जो है वो अब कंप्लीटली चार्ज होने लगेगा, ठीक है। अगेन द साइकिल विल स्टार्ट, तब आपका इंडक्टर का डब्बा खाली हो जाएगा,
कैपेसिटर का डब्बा कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी। समझ गए कि नहीं? अब क्या होगा, अब करंट जो है विल फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द करंट्स विल अगेन स्टार्ट टू इंक्रीज, द करंट्स विल अगेन स्टार्ट टू इंक्रीज, द करंट्स विल अगेन स्टार्ट टू इंक्रीज, जिसकी वजह से आपका चार्ज जो कैपेसिटर पे है वो घटने लगेगा। ठीक है, अगेन आपका इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसमें करंट्स बढ़ रही है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और फिर अगेन मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमाइज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमाइज होने के बाद शाबाश आप ये देखेंगे कि यू आर सीइंग योर एनर्जी बीइंग ऑसिलेटेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए कि नहीं? Therefore you call this LC circuit as an LC oscillator. समझ गए कि नहीं? You call this circuit as an LC oscillator because your currents are first increasing in one direction, then again decreasing, then again increasing in the opposite direction, then again decreasing. समझ गए कि नहीं? यानी कि if you try to obtain the output from this circuit, आप इस सर्किट से कोई आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो आपका आउटपुट होगा वो कुछ ऐसा आएगा। समझना मेरी बात? आपने से फॉर एग्जांपल यहां से आउटपुट ले लिया, ठीक है, आप ये देखेंगे कि आपकी करंट्स का आउटपुट कुछ ऐसे था। समझना मेरी बात, समझना क्या हो रहा था? पहले इंडक्टर में करंट का ग्राफ दिखा रहा हूं। पहले करंट्स बढ़ रही थी, ठीक है, मैक्सिमाइज हो गई, लेकिन फिर करंट्स घटने लगी, वापस जीरो हो गई। ठीक, फिर करंट्स देखो इस वाले केस में कैपेसिटर क्या हो रहा था? डिस्चार्ज हो रहा था। इस वाले केस में कैपेसिटर क्या हो रहा था? चार्ज हो रहा था। अब कैपेसिटर को डिस्चार्ज हो रहा है ना, लेकिन पोलैरिटी क्या हो गई? रिवर्स। देयरफॉर आपकी करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगी एंड अगेन फिर वापस डिक्रीज होगी, और आपका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड देयरफॉर यू कैन से दैट एक एलसी ऑसिलेटर सर्किट ऐसा सर्किट होता है which has a tendency to produce ACs or electromagnetic waves in the output when you are simply giving a DC input source. आपने इस कैपेसिटर को चार्ज कैसे किया होगा? एक बैटरी कनेक्ट की होगी इसके साथ, जब तक इसका पोटेंशियल उस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा तब तक ये चार्ज स्टोर कर लेगा, यानी कि अपने डीसी सप्लाई कर। लेकिन इस डीसी सप्लाई के बाद जब आपने इसको इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, आप ये देख रहे हैं कि आपका कैपेसिटर, आपका आउटपुट, आपका एलसी ऑसिलेटर, आपका एलसी सर्किट जो है ये आपके आउटपुट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देगा विद, रिमेंबर, हाई फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज्यादा होगी, आपकी ऑसिलेशंस हो रही होगी, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेशन विल बी 1/2 पाई into square root LC. ठीक है कि नहीं? The frequency of this output will be 1/2 pi into square root LC. समझ गए कि नहीं? तो what you're seeing, your LC circuit is being used as an oscillator. Now you'll again study this concept, but this is one of the prerequisites for my concept of transistor as an oscillator. ठीक है? Now अब जो आपका आउटपुट है, इस आउटपुट में क्या है? चाहे आप वोल्टेज का ग्राफ डालें, चाहे आप करंट का ग्राफ डालें, अगेन द ग्राफ विल बी सेम। ठीक है, योर करंट्स विल इंक्रीज, योर करंट्स विल डिक्रीज, योर करंट्स विल इंक्रीज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग? व्हाई इज दिस पोलैरिटी बीइंग चेंज्ड? द रीजन फॉर दैट इज देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ बैक ईएमएफ, एंड बैक ईएमएफ इज द केस given by Lenz's law and the Faraday's law, which state that EMF, back EMF, it is equal to minus L di upon dt. Whenever you have change in currents, you have EMF in the opposite direction. If the currents are increasing in one direction, the back EMF will increase in the opposite direction. जिसकी वजह से currents opposite direction में increase हो रही है। समझ गए कि नहीं? Now this negative sign signifies the backness or the opposition. ठीक है? Now this negative sign was given by Lenz, therefore this is the second law of electromagnetic induction, and this concept that EMF is produced whenever there is change in current, or whenever there is change in current, you can say when there is changing magnetic field, and when there is change in magnetic field, remember there is changing magnetic flux. So Faraday stated that whenever there is changing flux, remember there is a production of an EMF, but Lenz said that this EMF is a back EMF. समझ गए कि नहीं? तो इंशाल्लाह these concepts will be clear again, but I want you people to just understand the concept of an LC oscillator where an inductor and a capacitor are connected. A capacitor which is fully charged first of all discharges, and the energy stored in the form of electric field reduces. It gets converted into energy in the form of magnetic field, and again the polarity is reversed because of this concept, and then your currents again increase in the opposite direction, again decrease, and this will continue. But remember,
हमने क्या इस्तेमाल की है? वायर्स। वायर्स विल डेफिनेटली ऑफर सम अपोजिशन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी तो खर्च होगा ना उसमें भी। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से हम ये देखते हैं कि ऐसा ग्राफ आउटपुट में नहीं मिलता, ठीक है। आपका आउटपुट जो है वो कुछ ऐसा मिलता है, समझ लो मेरी बात। आपका आउटपुट जो है कुछ ऐसा मिलता है, ये आ गया पहला, ठीक है। फिर एम्पलीट्यूड इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। व्हाट वाज दिस? दिस वाज एन अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। दिस वाज एन आइडियल केस, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। लेकिन यहां पे क्या देख रहे हो? यहां पे आप देख रहे हो एम्पलीट्यूड इज कंटिन्यूअसली रिड्यूसिंग। 11th का कंसेप्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन, कुछ बच्चों ने मेरे पास पढ़ा होगा, कुछ ने रुफीन सर के पास पढ़ा होगा, कुछ ने खुद पढ़ा होगा। लेकिन इस बात को समझ लो कि भैया यहां पे आप देख रहे हो एम्पलीट्यूड इज कंटिन्यूअसली रिड्यूसिंग एंड देयरफॉर दीस ऑसिलेशंस आर कॉल्ड एज डैम्प्ड ऑसिलेशंस। क्या बोलते हैं इनको? डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है ना। अब हमारी ऑसिलेशंस जो हमें ऑब्टेन हो रही है फ्रॉम दिस एलसी सर्किट, वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस। हमारा मकसद जो था एलसी ऑसिलेटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हासिल करने का, वो तो हमें हासिल हो गया। लेकिन मसला ये है दैट वी आर नॉट एबल टू स्टेबलाइज द आउटपुट। हमारा आउटपुट जो है इसके एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं और एक वक्त आएगा कि ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और आपका सिग्नल जो है ये पूरी तरह से प्रोपोगेट नहीं कर सकता। बिकॉज इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स हमने ये देखा था कि जो हम बात करते हैं वी कॉल दैट सिग्नल एज अ बेस बैंड सिग्नल, ठीक है, और अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। इस सिग्नल में कमजोरी होती है, ये सिग्नल जो है बड़ी दूर तक नहीं जा सकती। अब इस सिग्नल को दूर तक लेने के लिए व्हाट यू डू, you try to superimpose it on a different kind of a wave called as a carrier wave. क्या कहते हैं उसको? आप इस सिग्नल को किसी वेव पे, जिसको हम क्या कहेंगे, कैरियर वेव। लेकिन रिमेंबर ये कैरियर वेव जो होती है ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। इस वेव पे आप अपनी वेव को, अपनी मॉड्यूलेटिंग वेव को सुपर इंपोज करते हैं और कैरियर वेव जो है वो इस मॉड्यूलेटिंग आपके बेस बैंड, आपके इंफॉर्मेशन सिग्नल को दूर लेके चला जाता है, ठीक। लेकिन हम जो कैरियर वेव बनाते हैं दैट इज विद द हेल्प ऑफ द एलसी ऑसिलेटर, ठीक है। वो वेव कैसी होनी चाहिए? वो वेव कुछ ऐसी होनी चाहिए, स्टेबलाइज्ड वेव होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो उसका आउटपुट में जो होगा, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो होना चाहिए कांस्टेंट, ठीक है। सिर्फ 5 वोल्ट की बात कर रहा हूं, +5 होना चाहिए, -5 होना चाहिए और ये कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक। हाई फ्रीक्वेंसी, रिमेंबर हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब यहां पर तो हमें हाई फ्रीक्वेंसी मिल गई, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। देयरफॉर यानी कि आपकी एनर्जी सिस्टम की कंटिन्यूअसली कम हो रही है। आप चाहते हो कि आपको ऐसे मिले, लेकिन आपको ऐसा नहीं मिल रहा, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन सिग्नल को दूर लेने के लिए कैरियर वेव जो है उसकी हाई फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट, स्टेबलाइज, स्टेडी होना चाहिए। लेकिन यहां पे स्टेडी नहीं, ठीक है ना। तो आप चाहोगे कि जो ये अनस्टेडी आउटपुट मुझे मिला, ये अनस्टेडी आउटपुट इस शक्ल में आ जाए, ठीक। नाउ इस चीज को इस चीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगेगा? एनर्जी लगेगी, ऑब्वियसली बात। वो एनर्जी कहां से खर्च हुई थी? वो एनर्जी खर्च हुई थी बिकॉज ये वायर्स जो है वो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे थे, ठीक है। नाउ वो एनर्जी आप वापस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो एनर्जी प्रोवाइड कर कैसे सकते हैं हम, ठीक है। जब एनर्जी प्रोवाइड करना चाहेंगे वो आप कैसे कर सकते हैं, सोच लें आप, ठीक। तो एक तरीका ये कि आप इन ऑसिलेशंस को एक बैटरी सप्लाई दे दें, ठीक है। बैटरी कंटिन्यूअसली एनर्जी दे सकती है कि नहीं? एक बड़ी सी बैटरी लगा देंगे, वो बैटरी जो है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी दे देगी। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? देख लो, प्रॉब्लम क्या है वो देख लो। आप जब एक कैपेसिटर को एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे ना, मैंने क्या कहा, जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ ऐसे हो, ठीक। आप चाहते हो कि आपका आउटपुट ऐसा हो, ठीक है। तो ये जो एनर्जी यहां पे खर्च हो रही है,
इस एनर्जी को आपको प्रोवाइड करना है। ये प्रोवाइड आप कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ ए बैटरी, ठीक है। एक बड़ी सी बैटरी लगा दी हमने, प्लस माइनस भी, ठीक है। लेकिन ये बैटरी देने का मसला है कि आपका जो आउटपुट है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि देयर इज अ फेज शिफ्ट, पॉजिटिव हाफ है, नेगेटिव हाफ है, पॉजिटिव हाफ है, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ है, नेगेटिव हाफ, ठीक ठीक है। जब पॉजिटिव हाफ की बात हुई, ठीक है, मैं समझ रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये कि प्लेट जो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो इस वक्त जब आपका पॉजिटिव हाफ चलेगा, जब आपका आउटपुट में पॉजिटिव हाफ आएगा, वो पॉजिटिव हाफ के वक्त आपका बैटरी जो है ऐड कर सकता है, एनर्जी सप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप इस पॉजिटिव हाफ को ऊपर लेके आ सकते हैं। लेकिन जब इन नेगेटिव हाफ्स आएंगे, इन नेगेटिव हाफ्स के वक्त आपका जो एम्पलीट्यूड है इस ऑपोजिट टर्मिनल की वजह से ओवरकम होने लगेगा, ठीक है। क्योंकि जब पॉजिटिव हाफ आ गया, ठीक है, इसने उसको ऐड किया, लेकिन जब नेगेटिव हाफ आ गया तब तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। ऑपोजिट डायरेक्शन के बाद क्या होगा, ये बैटरी आपको कंटिन्यूअसली इसके टर्मिनल चेंज करने, लेकिन आपका कैरियर हाई फ्रीक्वेंसी है, आप हवा में तो बैटरी को कंटिन्यूअसली चेंज नहीं कर पाएंगे ना। Therefore, the use of a battery as an energy source in order to maintain the amplitude of the formed electromagnetic wave, it is obsolete. You cannot do it. ठीक है, ये हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि it is not possible to continuously change the terminals. ठीक है, although the battery was a good source of energy, but terminal change करना प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए what we do? We use transistor. ठीक है, and this transistor, again you have already studied, we'll be using this transistor in a common emitter mode, an NPN transistor, जिसके characteristics हमने already पढ़े हैं, ठीक है, ये आप देख लें। Now, to overcome this problem, आपको समझ आ गया कि what was the actual problem, why we are using this transistor as an oscillator। पहले आप प्रॉब्लम को समझ लीजिए कि प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमारी कैरियर वेव्स जो है वो डैम्प्ड होती है। डैम्प्ड ऑसिलेशंस को स्टडी करने के लिए वी नीड टू सप्लाई सम एनर्जी, और एनर्जी सप्लाई जो कर सकता है एक बैटरी नहीं कर पाएगी, एंड उस एनर्जी को सप्लाई करने के लिए वी हैव अ सोर्स दैट इज अ ट्रांजिस्टर। नाउ विल बी यूजिंग अ कॉमन एमिटर मोड ट्रांजिस्टर एंड एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी है। नाउ अगर मैं डायरेक्टली एक कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर की बात करूं, इफ दिस इज द कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, ठीक, the collector terminal, the emitter terminal, the base terminal, ठीक है, again an NPN, of course, NPN, the arrow is from P to N, therefore this is an NPN, ठीक। Now you will be supplying some battery source on the input for biasing in the output, ठीक। There will be some potential difference VBE between these two terminals, and there will be some potential difference VCE between these two terminals, ठीक है। In order to plot a graph for the input characteristics, we have already done that. That will be the graph between base current in microamperes, okay, to the input voltage VBE in volts. पढ़ा है हमने, and हमने देखा था ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा था, पढ़ा है ना, कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, यानी कि VCE जो है वो आप क्या करोगे, कांस्टेंट। आपने देखा था VCE को बढ़ाओ, ये शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट, ठीक है ना, ऐसा अर्ली इफेक्ट पढ़ा था हमने। ये 5 वोल्ट के लिए, ये 10 वोल्ट के लिए, ये 15 वोल्ट के लिए, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा ही था, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, समझ लो मेरी बात, आपने इनपुट वोल्टेज कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया, लेकिन करंट्स पहले इंक्रीज नहीं हुई। जो करंट्स इंक्रीज नहीं हुई, इस स्टेट में आपका ट्रांजिस्टर क्या था, बंद था। तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं, कट ऑफ स्टेट, ठीक है। लेकिन फिर आपने एक वोल्टेज दे दिया जिसको हमने क्या कहा था, कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेज, और उसके बाद करंट्स इनॉर्मसली इंक्रीज होने लगी थी। दिस वाज द कट इन वोल्टेज, ठीक है, जिसके बाद आपकी करंट्स इनॉर्मसली इंक्रीज हुई थी, ठीक है, जिसको हमने नी वोल्टेज भी कहा था, ठीक। ये तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात है। लेकिन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम इसी ट्रांजिस्टर की देखें तो इट इज द ग्राफ बिटवीन द आउटपुट करंट व्हिच इज दैट द कलेक्टर करंट, शाबाश, इन मिली एम्पियर्स, to the graph between output voltage VCE in volts
एट कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ द इनपुट करंट बेस करंट, यानी कि बेस करंट को हम कांस्टेंट करते हैं, ठीक है। और ग्राफ कैसा था याद है आपको? ग्राफ ऐसा था, पढ़ा है ना? फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बेस करंट यू विल हैव डिफरेंट कर्व्स। हमने देखा, इस कर्व को देखो, अच्छे से समझना। आप देख रहे हो आउटपुट वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ आपकी करंट्स भी इंक्रीज हो रही है। कलेक्टर करंट बढ़ रहा है, एक वक्त आएगा जिसके बाद आपका कलेक्टर करंट और क्या हो रहा है? सैचुरेट हो रहा है। दिस इज द सैचुरेशन करंट, ठीक है ना, आइडियली, ठीक है। तो आप देख रहे हो पहले कलेक्टर करंट बढ़ रहा है, तो कलेक्टर करंट बढ़ रहा है कहां तक? एक पर्टिकुलर वैल्यू तक। सो ट्रांजिस्टर के पास एक प्रॉपर्टी है कि एक आउटपुट की करंट जो कलेक्टर करंट है वो इसको किसी वैल्यू से उठा के किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक लेके जा सकता है, और उस वैल्यू के बाद करंट इंक्रीज नहीं होगी। समझ गए? क्यों? उसकी वजह ये कट ऑफ स्टेट, कट इन वोल्टेज। इस वोल्टेज के बाद अगेन दिस इज स्टेबलाइज्ड, ठीक है। स्टेबलाइज होने के बाद आप ये देख रहे हो कि एक भी सूद से आपका आपका कलेक्टर करंट जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। अब वो करंट इंक्रीज नहीं होगा तो आप ये देख रहे हो कि आपका ट्रांजिस्टर जो हमें अभी चाहिए था, हम चाहते थे कि जो करंट्स कंटिन्यूअसली डैम्प हो रही है, हम चाहते थे कि ये करंट्स इंक्रीज हो, लेकिन इंक्रीज हो किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक, इससे ज्यादा ना हो। तो आप ये देख रहे हो इस ग्राफ से, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आप ये देख रहे हो ट्रांजिस्टर के पास एक प्रॉपर्टी है भैया। क्या प्रॉपर्टी है? कि ये करंट्स को पहले इंक्रीज करेगा, कहां तक? एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, उसके बाद कांस्टेंट फ्लैट कर्व। समझ गए? वो क्यों हो रहा है? एक कलेक्टर करंट क्यों कांस्टेंट हो रही है? उसकी वजह तो है। एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें, तो आपको पता है ना कि दिस इज द एमिटर, दिस इज द बेस, दिस इज द कलेक्टर। नाउ डोपिंग लेवल के आते से कलेक्टर की फिक्स्ड लेवल ऑफ डोपिंग है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। से फॉर एग्जांपल कलेक्टर में हमने डोपेंट्स इस्तेमाल किए से 100 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या होगा जब कलेक्टर करंट की बात हम करेंगे तो इन 100 इलेक्ट्रॉन्स की करंट होगी ना। हाँ, जो इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनकी वजह से भी करंट्स होगी, बट दे विल बी वेरी स्मॉल, माइक्रो एम्पियर करंट्स, लीकेज करंट्स, उनकी इंपॉर्टेंस नहीं। करंट की इंपॉर्टेंस अगर है वो तो इन 100 इलेक्ट्रॉन्स की। अब इन 100 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो पहले ये 100 इलेक्ट्रॉन्स आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम होने लगेंगे, तो इसीलिए आपका ग्राफ कैसा आएगा? इंक्रीज 20, 40, 50, 60, 80, 90, 100 के बाद कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट्स। समझ गए कि नहीं? सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम ये थी कि आप इस चीज को यहां तक लेके जाएं और इसके बाद भी बढ़ना नहीं चाहिए, एक सैचुरेशन वैल्यू तक लेके जाएं, क्योंकि इसके बाद सैचुरेट हो रहा है, दिस इज द सैचुरेशन लेवल। आप इसके अलावा आपका करंट का वैल्यू नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आपका इसके अलावा आपके वोल्टेज का वैल्यू नहीं जाना चाहिए। समझ गए? तो देयरफॉर ट्रांजिस्टर may be used, can be used rather for for solving this problem, ठीक है। हाँ, आप कहेंगे सर ये नेगेटिव वाला पार्ट नीचे कैसे आएगा? सो नेगेटिव वाला पार्ट बेटा वो भी नीचे आ सकता है, उसका भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ट्रांजिस्टर को we already know that transistors are actually used as amplifiers. A positive change in the input will be amplified in the output, ठीक। A negative change in the input will be amplified in the output, पढ़ा है ना हमने? So amplification तो इसमें है, तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं? We are using this transistor as a feedback circuit. What is a feedback circuit? शाबाश, feedback. What do you mean by feedback? यानी कि जो आपका आउटपुट मिलेगा, you will again feed that to the input. आपका जो ट्रांजिस्टर, we are in order to solve this problem we are using a feedback circuit. कौन सा सर्किट? फीडबैक सर्किट, ठीक है। वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है, आपका एम्पलीफायर होगा, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, यू विल फीड द इनपुट एंड यू विल गेट द आउटपुट, ठीक है। यू विल गेट द आउटपुट, ये आपका इनपुट, ये आपका आउटपुट, ठीक। लेकिन जो आउटपुट का हिस्सा है यू अगेन फीड दैट बैक, ठीक है। We'll again feed that back into the input side by means of
a feedback device. By means of a feedback device. हाँ, फिर आपको समझ आ जाएगा फीडबैक डिवाइस एलसी ऑसिलेटर हो, ठीक है। हो क्या रहा है समझना मेरी बात। आपका मसला ये था, यही था ना। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि ये वैल्यू इधर पे आ जाए, आप चाहते हो कि आपका करंट जो है, आपका आउटपुट जो है वो ऐसे आ जाए, ठीक है। तो होगा क्या, समझना मेरी बात। ट्रांजिस्टर ऑलरेडी एज एन एम्पलीफायर है, तो जब आप इनपुट में कोई चेंज देंगे, से फॉर एग्जांपल आपने 1 वोल्ट दे दिया, एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी है इसमें, तो इसका मतलब आउटपुट में 2 वोल्ट आएंगे। अगेन बिकॉज वी हैव अ फीडबैक डिवाइस, देयरफॉर दिस आउटपुट विल बी फेड बैक टू द इनपुट साइड, देयरफॉर आपका 2 वोल्ट यहां से आ गया, दिस विल बी एम्पलीफाइड, क्या बन जाएगा 4 वोल्ट। अब इस बैक अगेन 4 वोल्ट वापस फीड किया जाएगा, तो 4 वोल्ट ये आ जाएगा एम्पलीफाई, तो 16 वोल्ट। 16 फीड किया जाएगा इस वाले साइड से, तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 256 वोल्ट, तो चलता जाएगा ना। समझ गए कि नहीं? तो आप क्या देख रहे हो, से फॉर एग्जांपल मैक्सिमम वैल्यू 256, तो अगर आप 256 को आप यहां से फीड करेंगे, ठीक, 256 को आपने फीड किया, आउटपुट में 256 से ज्यादा करंट नहीं आएगी ना। जब आप 256 यहां से फीड कर रहे हो आप फीडबैक से, आउटपुट में अगेन 256 आएगा, क्यों? क्योंकि सैचुरेशन हो गई। सो करंट्स जो है वो इंक्रीज तो हो रही है, ये करंट्स तो इंक्रीज हो रही, कहां तक? सैचुरेशन वैल्यू तक, क्योंकि इसके बाद ये करंट्स को इंक्रीज नहीं कर पाएगा, ठीक। इसी तरह से जब आपकी नेगेटिव चेंज आ जाएगी, एम्पलीफायर है, नेगेटिव चेंज, से फॉर एग्जांपल नेगेटिव चेंज -1 वोल्ट, तो आउटपुट में क्या आएगा, -2 वोल्ट आएगा। चेंज की बात हो रही, -2 विल बी अगेन फेड आउटपुट में -4, -4 विल बी अगेन फेड, तो यहां आउटपुट में 16, -16 विल बी अगेन फेड आउटपुट में -256, तो चलता जाएगा ना। समझ रहे हो? तो आप देख रहे हो कि जो आपका ये इशू था, दिस इज बीइंग सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ दिस फीडबैक सर्किट इनटू दिस, ठीक है। समझ गए कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? Therefore transistor can be used to solve the previous problem. नेगेटिव हाफ्स को भी एम्पलीफाई कर रहा है और पॉजिटिव हाफ्स को भी एम्पलीफाई कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट, इनपुट करंट्स पॉजिटिव हाफ्स को इसने करंट्स को इंक्रीज किया, कहां तक? सैचुरेशन तक, ठीक। लेकिन नेगेटिव वैल्यूज को ये डिक्रीज कर रहा है ना, -1 को ले रहा है -2, -2 को ले रहा है -4, -4 को ले रहा है -16, यानी कि डिक्रीज ही कर रहा है। और फर्दर कहां तक डिक्रीज, कहां तक करंट हो सकती है? शाबाश, हाँ, रिमेंबर, डिक्रीज हो जाएगी करंट स्टिल कट ऑफ तक। ग्राफ अभी देखा था, करंट्स यहां से इंक्रीज हो रही, डिक्रीज कर सकता है कट ऑफ, क्योंकि इसके बाद तो कोई डिक्रीज नहीं होगा ना, जीरो करंट्स। समझ गए? क्लियर है कि नहीं? तो जीरो करंट्स में कुछ वोल्टेज होगा, वो वोल्टेज जो है दैट विल बी शोन इन द आउटपुट ग्राफ। क्लियर है कि? ओके, सो ट्रांजिस्टर इंक्रीज कर सकता है करंट्स टू अ सर्टेन लेवल, दैट इज द सैचुरेशन लेवल। ट्रांजिस्टर करंट्स को घटा सकता है अप टू अ सर्टेन लेवल नोन एज द कट ऑफ लेवल। क्लियर है? ठीक है, ओके। नाउ अब इस चीज को और देखिए। ठीक था, मैंने ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया था, लेकिन अगेन आई एम यूजिंग दीज वायर्स। अब इन वायर्स की तो अगेन कुछ रेजिस्टेंस, अगेन we'll have damping, and damping का issue again we have to solve that. In order to solve this problem, what we do, we are using the concept of mutual inductance. Now mutual inductance की बात करें, मैंने ऑलरेडी रेक्टिफिकेशन में आपके साथ सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन का कुछ कंसेप्ट डिस्कस किया था. I'll try to recap that. I hope you remember that concept. Now म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें तो म्यूचुअल इंडक्शन कुछ ऐसा होता है कि we have got two coils. अगर आपको वहां पे याद होगा, दो कॉइल्स हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट है. नाउ इनपुट वाले साइड से आप कुछ सिग्नल दे देंगे, ठीक है. आउटपुट यू विल नॉट बी कनेक्टिंग दैट विद द एसी सोर्स, बट यू विल ऑब्टेन एन आउटपुट. दिस इज द सेकेंडरी कॉइल और द आउटपुट कॉइल. करंट्स इसमें चलने की वजह से अगेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बट इंडक्टर करंट्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कराता है. करंट्स इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा. वो चेंजिंग फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक होगा. वो लिंक होने की वजह से अगेन व्हेन देयर इज चेंजिंग फ्लक्स देयर इज बैक ईएमएफ गिवन बाय -d∅dt. दिस इज द
लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडेज लॉ, ठीक है। बैक ईएमएफ इज इक्वल टू द चेंज इन द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चूंकि चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एक ईएमएफ, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेंस होगा, जिसकी वजह से आउटपुट में आपकी करंट्स चलने लगेगी, ठीक। नाउ व्हाट यू वांट कि आपका जो फ्लक्स बन रहा है वो इस कॉइल के साथ कंप्लीटली लिंक हो। देयरफॉर वी डिफाइन समथिंग नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, के, ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू जो है इट लाइज बिटवीन 0 and 1, ठीक है। इट कैन बी 0, इट कैन बी 1। Now we want that maximum flux should link with the secondary coil. So coefficient of coupling का वैल्यू तब 1 होना चाहिए। और इस चीज को 1 होने के what we do, we try to connect, we use the concept of mutual induction in this way. आप एक coil को दूसरी coil के साथ तो रखते हैं, ठीक है, but with the help of a soft iron core, you first of all wind these coils on the soft iron core, सॉफ्ट आयरन कोर आपने पढ़ा होगा दरअसल, सॉलिड्स में भी मत पढ़ा होगा, दैट इट हैज अ प्रॉपर्टी दैट इट इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल है? फेरोमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक आपने पढ़ा होगा, इनके पास ये क्षमता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे अट्रैक्ट देम। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर कहीं दूर जा रही है तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को विद इन दी मटेरियल कन्वर्ज करने की क्षमता रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा समझना, जब यहां से करंट चलेगी, ठीक, इनपुट है ना ये वाला इनपुट साइड, ये कौन सा साइड? आउटपुट साइड। करंट किस में चल रही है? कॉइल में चल रही है। तो कॉइल में जब करंट चलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगेन वो वाला कांसेप्ट जो हमने पहले पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आएगा, बट दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डाइवर्जिंग फील्ड लाइंस, ठीक है, ऐसे आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ तो जाया हो रही है, बट बिकॉज आई एम यूजिंग दिस मटीरियल सॉफ्ट आयरन कोर, ये इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने में समेत रखता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो जाती है, और लिंक होने के बाद we are getting maximum signal in the output. समझ गए कि नहीं? So this concept of mutual induction is used in order to, because देखो यहाँ पे समझना, रेजिस्टेंस का concept नहीं है, therefore आप ये देखोगे कि आपका जो feedback device है, ठीक है, feedback device है, that will be using the concept of this mutual inductance because in order to prevent that concept of damping. समझ गए कि नहीं? Okay. Now अब अगर मैं ओवरऑल सर्किट की बात करूं, हाउ दिस ट्रांजिस्टर विल बी यूज्ड एज एन ऑसिलेटर, अभी तक ये सारा जो था इट वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन, ठीक है। आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, ठीक। अब केयरफुल रहें आप, पिछले लेक्चर्स को रिपीट करें, और जो कंसेप्ट्स में यहाँ पे कुछ दे रहा हूँ which I know you have not studied, but I want you people to first a little bit idea you should have about mutual induction, ठीक। इसी तरह से एलसी ऑसिलेटर, एक इंडक्टर कैसे होता है, सेल्फ इंडक्शन वो क्या होती है, ठीक है। तो वो सब चीजें दे विल हेल्प यू हियर, ठीक। नाउ व्हेन आई यूज दिस ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक द सर्किट डायग्राम। द सर्किट डायग्राम इज समवट लाइक दिस। यू गॉट अ कॉमन एमिटर जंक्शन, ठीक। यू हैव गॉट अ टैंक सर्किट। कौन सा सर्किट? एक टैंक सर्किट। There is a tank circuit. टैंक इसको क्यों कहते हैं आपको समझ आ जाएगा, and then you have got one more coil here which is known as the tickler coil. To tickle means to tease, ठीक है। This coil is called as the tickler coil. Let me represent this by L dash, ठीक है। And then you will be making this emitter grounded, ठीक है, and you will be connecting it with the help of some biasing sources. Now कॉमन एमिटर मोड की बात करें, if this is the emitter, this is the base, this is the collector, ठीक। NPN है ना, N P और N, P इधर लिखते हैं तो अच्छे से समझना। एमिटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड होने का मतलब कुछ ऐसे बेस के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा, ठीक है। दिस इज ए बैटरी V, because it is connected with base and emitter, so मैं इसको BB लिख रहा हूँ। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूँ, the output terminals are collector and emitter, therefore they should be reverse biased. N type with the positive terminal। समझ लीजिएगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लकीरें दिखाई, यहाँ पे 4। Remember, in general, whenever you are going for biasing, remember output biased voltage must be more
एज कम्पेयर टू द इनपुट बायस्ड। ठीक है, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखें जब कंस्ट्रक्शन करोगे। आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट वोल्टेज शुड बी मोर, या रिवर्स बायस्ड वोल्टेज शुड बी मोर देन द फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं की को कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, एंड दिस बिकॉज दिस इज कनेक्टेड विद कलेक्टर VCC। ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव। अब करंट्स की डायरेक्शन देखते हैं, तो करंट्स की डायरेक्शन क्या आएगी? शाबाश, कलेक्टर करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, द बेस करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, and of course the emitter current will flow in outward direction because Kirchhoff's current law, input currents will be equal to the output currents। ठीक है ना? ओके, नाउ समझना इस चीज को। चलिए स्टेज की बात, स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं। नाउ दिस सर्किट, मैंने आपको पहले भी कहा, दिस इज एन LC ऑसिलेटर। इसी के पास क्षमता है वो जो हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस करेगा वो कौन करेगा? ये LC ऑसिलेटर। दिस इज कॉल्ड एज अ टैंक सर्किट। क्या इसको बोलते हैं? टैंक सर्किट। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाएगा लेकिन जिनमें डैम्पिंग होगी। हम नहीं चाहते वो डैम्पिंग, हम चाहते हैं कि वो आउटपुट में स्टेडी करंट आए। ठीक, अब कैसे हो रहा है ये सब देख लें आप। देखो बच्चा, स्टेज फर्स्ट आई विल बी डिस्कसिंग वेरी टेक्निकली दिस concept। लेट मी गो विद individually with the stages, what is going to happen? समझ, first of all, in the first state what I'll do is I'll close this key. I'll close the key. Key is closed. Now when the key is closed, what is going to happen? समझ ले, obvious सी बात है, this battery will supply some voltage or this will supply some current, तो आपका कलेक्टर करंट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। Now, because this current, collector current, is flowing through this coil known as the, मैंने क्या कहा इसका नाम? टिकलर कॉइल। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, this coil is the टिकलर कॉइल। तो आप क्या देखोगे? मैंने आपको कहा दरअसल जो टिकलर कॉइल में से करंट, कलेक्टर करंट बढ़ेगी, चलेगी, वो करंट अब्रप्टली कांस्टेंट वैल्यू पे नहीं होगी, वो करंट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होने लगेगा। समझ गए? आपका करंट तो यहां से निकला, लेकिन वो करंट कहां से फ्लो हो रहा है? इंडक्टर में से, टिकलर कॉइल में से। टिकलर कॉइल उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएगी। समझ रहे हो? तो आप देख रहे हो आपका कलेक्टर करंट, जब करंट यहां से चल रहा है वो कलेक्टर में से चल रहा है ना, फिर देयरफॉर मैं इसको कलेक्टर करंट कह रहा हूं। वो कलेक्टर करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, इंक्रीजेस। ठीक, जब आपका कलेक्टर करंट बढ़ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो करंट थ्रू द इंडक्टर, थ्रू दिस कॉइल इज इंक्रीजिंग। दिस करंट, because it is increasing, the magnetic field expression you already know, it is equal to mu naught Ni। तो करंट चूंकि इंक्रीज हो रही है, करंट इंक्रीज होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने आपको अभी कहा मैग्नेटिक फ्लक्स एक चीज होता है, मैग्नेटिक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो फ्लक्स जो है दैट इज गिवन बाय B.A। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो आप बताएं फ्लक्स को क्या होगा? फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, यानी कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स इंक्रीज होने का मतलब मैं ये कह सकता हूं फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? तो मुझे एक बात बताओ, जब इस कॉइल में करंट बढ़ रही है, तो इन शॉर्ट में कह रहा हूं इस कॉइल में जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स लाइंस, अब 2 थी, 3 हो गई, फिर 4 हो गई। ठीक, फ्लक्स लाइंस बढ़ रही, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चूंकि इस कॉइल में से बढ़ रही है, बाय द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AMF is equal to minus a d phi by dt। Whenever there is a change in flux, there is back EMF. Therefore, what is going to happen? By the concept of mutual induction, what is going to happen? This coil, this tank coil, this coil will link its flux with this coil। अब ये नहीं समझना कि बहुत दूर है। ठीक है, दरअसल आपका ट्रांजिस्टर बहुत छोटा डिवाइस है, उसमें सारा चीज लगा होता है। ठीक, तो आप देख लें कि आपका जो ये टिकलर कॉइल का फ्लक्स, चेंजिंग फ्लक्स, ये लिंक किसके साथ हो जाएगा? आपके टैंक कॉइल के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है, टैंक कॉइल के साथ जब फ्लक्स लिंक हो जाएगा, मगर ये कौन सा फ्लक्स है? चेंजिंग फ्लक्स। तो चेंजिंग फ्लक्स जब टैंक कॉइल के साथ लिंक हो जाएगा, क्या प्रोड्यूस होगा? बैक EMF। दैट EMF विल ट्राई टू अपोज दिस चेंजिंग EMF, दिस चेंजिंग फ्लक्स। यानी कि अगर इसके साथ 4 लाइंस लिंक हो गई, ये EMF
उन 4 के बदले 3 ही लिंक करने की कोशिश करेगा, यानी कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अब करंट्स को इंक्रीज कराएगा, ताकि जो ऑलरेडी इसके साथ फ्लक्स लिंक हो रहा था वो फ्लक्स के खिलाफ काम हो। ठीक है, यानी कि से फॉर एग्जांपल ये वाला साइड पॉजिटिव हो गया और ये वाला साइड नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो क्योंकि ईएमएफ वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव मींस करंट्स विल फ्लो, तो द करंट्स विल स्टार्ट टू फ्लो। व्हेन द करंट्स विल स्टार्ट टू फ्लो, ऑब्वियस सी बात ये, आपकी बेस करंट इस डायरेक्शन में थी, चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, आप ये देखोगे पॉजिटिव टर्मिनल विल स्टार्ट टू फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज दिस कैपेसिटर, यानी कि आपका कैपेसिटर जो है ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो मैं कह रहा हूं कैपेसिटर जो है ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, कैपेसिटर विल चार्ज। तो जब आपका कैपेसिटर चार्ज होगा बेटा, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव प्लेट बन जाएगा और ये नेगेटिव प्लेट बन जाएगा। जब ये पॉजिटिव प्लेट बन जाएगा, यानी कि समझना, आपका बेस करंट जो था ना, बेस करंट आप चाहते थे बेस एमिटर जंक्शन क्या हो, फॉरवर्ड बायस का मतलब बेस के साथ कौन सा टर्मिनल आपने जोड़ा, पॉजिटिव टर्मिनल। अब जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो आप ये देख रहे हो कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ जुड़ा हुआ है, बेस के साथ। देयरफॉर जो फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज था, फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन था, वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो जब ये स्ट्रेंथन हो जाएगा, आप ये मानते हो कि जो आपका बेस करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा ना। तो बेस करंट जब इंक्रीज होगा, सीधी सी बात, इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से योर एमिटर करंट इज इंक्रीजिंग। समझ गए कि नहीं? ठीक है ना? कब तक समझना मेरी बात, इस चीज को समझना मेरी बात। बेस करंट बढ़ रहा है तो एमिटर करंट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बेस जब करंट इंक्रीज कराएगा उसका मतलब एमिटर करंट, बिकॉज एमिटर करंट इट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। बेस करंट बढ़ रहा है तो एमिटर करंट भी बढ़ेगा ना। ठीक, तब अच्छा हो गया एक चीज। दूसरी चीज हो क्या रहा था, कलेक्टर करंट बढ़ रहा था। मैंने क्या कहा, कलेक्टर करंट बढ़ने की वजह से टिकलर कॉइल में फ्लक्स की वजह से लिंक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ की वजह से बेस करंट इंक्रीज हो गया। और जब आपका बेस करंट इंक्रीज हो गया, आप ये देख रहे हो कि आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता गया और आप ये देखोगे कि आपका एक वक्त आ जाएगा कि आपका कैपेसिटर जो है पहले कंप्लीट चार्ज हो जाएगा, है ना। कैपेसिटर अभी तक चार्ज स्टोर कर रहा था ना, करंट्स इंक्रीज हो रही थी ना, चार्ज स्टोर हो रहा था। जो करंट्स यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी, उन करंट्स की वजह से आपका कैपेसिटर जो है यहाँ पे ये चार्ज हो रहा था और एक वक्त आ जाएगा कि आपका कैपेसिटर जो है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट चार्ज। ये हो जाएगा कंप्लीटली चार्ज। और जब आपका कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होगा, तब ये हुआ होगा कि जो आपका कलेक्टर करंट है अब ये सैचुरेट हो गया होगा। ठीक है ना? देखो समझ लो मेरी बात, कलेक्टर करंट तो बढ़ रहा था, कहां तक बढ़ेगा, जब सैचुरेशन आएगा। वो हमने देख लिया ग्राफ, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऐसा था ना, कलेक्टर करंट बढ़ रहा है लेकिन फिर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो इस कांस्टेंट वैल्यू तक आपका कलेक्टर करंट बढ़ रहा था, तब तक फ्लक्स लिंक हो रहा था और तब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। लेकिन जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज, आपका बेस करंट तो बढ़ रहा है लेकिन आपका कलेक्टर करंट अभी भी कांस्टेंट रहेगा। समझ लो ग्राफ, कलेक्टर करंट और VCE का एट कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ बेस करंट बढ़ा दो फिर भी कलेक्टर करंट कांस्टेंट, बेस करंट बढ़ा दो कलेक्टर करंट कांस्टेंट। तो कलेक्टर करंट जो है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ बेस करंट इट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो बेस करंट तो बढ़ रही है लेकिन आपका कलेक्टर करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और मैं ये कह सकता हूं वो सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट होने का मतलब क्या है, आपका कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज यानी कि आपका IC कलेक्टर करंट क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। ठीक है, अब जब ये सैचुरेट हो गया, समझना मेरी बात, सैचुरेट होने के वक्त व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द टिकलर कॉइल। जब एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द टिकलर कॉइल, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट, this will be constant, obviously बात, magnetic field will be constant, magnetic field constant होने का मतलब flux will be constant, and when there is a constant flux, differentiation of constant is zero, we can say that there is no EMF now,
no mutual induction is taking place, because no flux is getting linked, because the flux is not changing. We are not having a change in flux. When we are not having a change in flux, no flux will link between the tickler coil and the tank coil, जिसकी वजह से अब कोई भी EMF यहाँ पे नहीं होगा. और जब कोई EMF नहीं होगा, what is going to happen? Again the same thing. Your capacitor will start to discharge. And when your capacitor will start to discharge, its polarity is going to reverse. पढ़ा हमने, पहले मैंने आपको कहा था. तो ये अब नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा और ये आपका पॉजिटिव प्लेट बन जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका फॉरवर्ड बायस जंक्शन था, बेस एमिटर जंक्शन, अभी तक तो स्ट्रेंथन हो रहा था ना, अब क्या हो जाएगा? कमजोर. आपका फॉरवर्ड बायस जंक्शन क्या हो जाएगा? कमजोर. स्ट्रेंथन पहले हो रहा था, अभी कमजोर हो जाएगा. जब आपका फॉरवर्ड बायस जंक्शन कमजोर हो जाएगा तो आप ये मानते हो कि आपकी बेस करंट पहले बढ़ रही थी, अब क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. जब आपकी बेस करंट डिक्रीज हो जाएगी तो आप ये समझ रहे हो कि आपका जो कलेक्टर करंट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. लेकिन कहां तक डिक्रीज हो? या एमिटर करंट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. एमिटर करंट डिक्रीज, यहां पर कलेक्टर करंट बढ़ रहा था, एमिटर करंट बढ़ रहा था. ठीक, क्यों? क्योंकि लिंक बेस कलेक्टर. जब बेस बढ़ जाएगा ऑब्वियसली कलेक्टर बढ़ जाएगा, जब बेस बढ़ जाएगा ऑब्वियसली एमिटर बढ़ जाएगा. लेकिन मैं कह रहा हूं कि पहले वाले केस में आपका बेस करंट बढ़ रहा था, आपका एमिटर करंट बढ़ गया, आपका कलेक्टर करंट बढ़ गया. कलेक्टर करंट देखो, पहले कलेक्टर करंट कुछ का वैल्यू था, लेकिन इसकी वजह से अब कलेक्टर को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो रहा है, उसको फॉरवर्ड बायस कंडीशन में फॉरवर्ड फायदा मिल रहा था और कलेक्टर करंट एनॉर्मसली इंक्रीज हो रही थी. एनॉर्मस इंक्रीज की वजह से हमने देखा जल्दी इंक्रीज होगी और फिर स्टेबलाइज होगी. ठीक, अच्छा, सैचुरेट होगी. सैचुरेट होने के बाद देयर विल बी नो इंक्रीज एंड देयरफॉर योर कैपेसिटर नाउ विल एंटर द स्टेज सेकंड. पहले वाले स्टेज में इट इज चार्जिंग, तब कलेक्टर करंट क्या हो रही थी? इंक्रीज. लेकिन दूसरे वाले केस में स्टेज सेकंड. In stage second, you'll see that in stage second, you'll see that your forward biased condition will weaken. वीकन होने की वजह से आपकी बेस करंट घट जाएगी. जब आपकी बेस करंट घट जाएगी, आपका एमिटर करंट भी घट जाएगा और जिसकी वजह से देखो बेस करंट घट रहा है तो कलेक्टर उसके साथ करने का इन कंटिन्यूटी है ना, देयरफॉर आपकी कलेक्टर करंट जो है वो भी क्या घट जाएगी. ये ग्राफ आपको पता है, बेस करंट कांस्टेंट. जब आपकी बेस करंट कम होती गई, आपकी कलेक्टर करंट भी कम वैल्यू आएगी. ठीक है, तो जब आपका कलेक्टर वैल्यू का कम वैल्यू आता जाएगा, कब तक कम होगा? शाबाश, जब तक कट ऑफ स्टेट आएगा. क्योंकि कट ऑफ स्टेट में आपको पता है कि कलेक्टर इसके बाद कोई करंट डिक्रीज नहीं कर पाएगा. ट्रांजिस्टर जो है उसमें हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑलरेडी ये चीज देख ली है. देयरफॉर आप ये देखोगे कि कलेक्टर करंट डिक्रीज हो जाएगी. डिक्रीज कब तक? जब आपकी कलेक्टर करंट फाइनली जीरो हो जाएगी. और जीरो होने का मतलब ये, शाबाश, आपका कलेक्टर करंट जब जीरो हो जाएगा आपको ये समझ आएगा कि अब आपका कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया. एंड व्हेन इट इज कंप्लीटली डिस्चार्ज द प्रोसेस विल अगेन स्टार्ट. शाबाश, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आपने अब की को ऑलरेडी उस स्टेट में रखा था, ऑफ स्टेट में क्लोज स्टेट में रखा था. ठीक, जब आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था यू कैन ओपन इट, कोई इशू नहीं. लेकिन जब आपका कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होने के बाद नए से चार्ज होगा, you have to again close the key. When you again close the key, what is going to happen? The same phenomena will take place. The collector current will increase, reach a saturation value. तब तक आपका कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा. फिर कैपेसिटर चार्ज होने के बाद again the capacitor will start discharging और डिस्चार्जिंग के वक्त again you will see that your discharging case the collector current will again start to decrease till it reaches zero. Now समझना, whenever there is change in collector current के वक्त सिर्फ फ्लक्स लिंक होता है, म्यूचुअल इंडक्शन का काम आता है. लेकिन जब सैचुरेट हो गई कलेक्टर करंट या कलेक्टर करंट जीरो हो गई तब कोई भी म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होता. क्लियर? नाउ देख लो इस सर्किट में क्या हुआ. इस सर्किट में एक बार कैपेसिटर चार्ज और दूसरी बार कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया थ्रू दिस इंडक्टर. चार्ज डिस्चार्ज. आपके घर में टैंक्स लगी होती है, उनमें पहले पानी आता है फिर आप इस्तेमाल करते, पानी आता है आप इस्तेमाल करते हो, यू कॉल देम टैंक्स. देयरफॉर दिस सर्किट इज कॉल्ड एज टैंक सर्किट. क्लियर हो गया? समझ आ गया कि नहीं? ओके, now try to understand this. What is happening? Again the same thing is happening, but with the help that your transistor
with the tank circuit, with this concept of mutual induction, we are able to again get those electromagnetic waves, ठीक, but with a constant amplitude, ठीक है, क्यों? Because energy is being continuously supplied in the form of magnetic field, in the form of electric field, in the form of magnetic field, in the form of electric field. एक बार कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में, दूसरी बार कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है थ्रू दिस इंडक्टर, तब हम देखते हैं कि फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने के वक्त आप ये देखोगे कि आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज इंटरकन्वर्जन ऑफ द टू एनर्जी सोर्सेज, एंड thus you are seeing that there is an oscillation of energy between electric field and magnetic field, ठीक है। Again you'll remember the value of that energy or the frequency of that interconversion of energy is 1 by 2 pi into square root LC, 1 by 2 pi into square root LC. This is the frequency of oscillation of the electric and the magnetic field जो यहाँ पे हो रहा है, ठीक। हाँ, sometimes आप बुक्स पे देखोगे आपका जो ये सर्किट है, दे कॉल दिस एज अ बेस ट्यून्ड ऑसिलेटर। क्या बोलेंगे इसको? बेस ट्यून्ड ऑसिलेटर। व्हाई? बिकॉज यू रिमेंबर दिस थिंग, शॉर्ट में बता रहा हूं। हमने जो यहाँ पर इंडक्टर कनेक्ट किया है, टैंक का इंडक्टर, दैट इज बीइंग कनेक्टेड विद डायरेक्टली विद द बेस, देयरफॉर यू कॉल दिस एज अ बेस ट्यून इंडक्टर। कभी कभी क्या होता है, ये इंडक्टर जो है ना, ये इस कलेक्टर के साथ कनेक्टेड होता है। कौन सा? टैंक पर, यानी कि इस वाले साइड से जुड़ा हुआ, फिर ये डायरेक्ट कनेक्शन इसके साथ लेंगे, तब इसको हम क्या कहेंगे? कलेक्टर ट्यून्ड। तो कलेक्टर ट्यून्ड हो या बेस ट्यून्ड हो, आप कोई इशू नहीं, आप ये समझ सकते हैं कनेक्शन से, ठीक है। सो दिस वाज द ओवरऑल कांसेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ठीक। हाँ, समटाइम्स व्हाट यू विल सी, कभी दो लाइंस यहाँ पे दी गई होती है in order to specify that ये कॉइल और ये वाली कॉइल by the concept of mutual induction they are linked, ठीक है। हाँ, अब आपने क्या देखा? ओवरऑल आपने देखा इस सर्किट को इनपुट देने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आउटपुट का कुछ हिस्सा वापस फीड करता है, वापस फीड करने की वजह से शाबाश, अगेन दैट विल एम्पलीफाई, अगेन आपको आउटपुट मिलेगा, अगेन इट विल फीड इट बैक, देयरफॉर दिस सर्किट इज समटाइम्स कॉल्ड एज अ सेल्फ सस्टेनिंग सर्किट। क्या होता है सेल्फ सस्टेनिंग सर्किट? ठीक, पहली चीज, because a part of the output is fed to the input and then again the process continues, ठीक। दूसरी चीज, अगर आप यहां पे फीडबैक की बात करें तो हमने तो फीडबैक दे दिया, आउटपुट को वापस इनपुट पे फीड किया, ठीक। लेकिन वी वांट टू अंडरस्टैंड कि जब हमारा पॉजिटिव हाफ आया था आउटपुट में, हमने इनपुट के वाले साइड से कौन सा हाफ फीड किया, ठीक ठीक। तो समझ लें आप मेरी बात। दरअसल we have already studied this transistor, common emitter transistor, and by the effect called as Miller effect, हमने ये देखा था, there is a phase shift of 180 degrees, पढ़ा हमने, by the common emitter mode, पढ़ा है ना। यानी कि अगर आपका इनपुट ये था, आपको आउटपुट में ये मिलेगा कि नहीं, ठीक। दूसरी चीज, म्यूचुअल इंडक्शन के वक्त, रिमेंबर म्यूचुअल इंडक्शन के वक्त, the input and the output they vary by a phase of 180, they vary by a phase of 180, ठीक। क्या मतलब को समझ जाओ, हाँ होगी बात। When there is the process of mutual induction, आपने इनपुट में ये दिया, आपके आउटपुट में ये मिलेगा। क्यों? समझ लो, ये कॉइल है ना, और ये वाली भी एक कॉइल है। इस कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया इस डायरेक्शन में, दिस इज द साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल, ठीक। तो ये कॉइल, ये फ्लक्स जब इसके साथ लिंक होगा तो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन। लेकिन ये वाली कॉइल जो है ना, बैक ईएमएफ की वजह से क्या चाहेगी? ये कॉइल चाहेगी कि फ्लक्स लाइंस मेरे साथ लिंक ना हो, देयरफॉर ये करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाएगी, एंड जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट चलाएगी, ये इस चीज को अपोज करेगी, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, इस डायरेक्शन, क्योंकि इसके साथ लिंक कौन सा हो रहा था? ये वाला। ये कौन सा प्रोड्यूस करेगी? ये वाला, ठीक। तो आप क्या देखो, अब ये साउथ पोल बन गया, ये नॉर्थ पोल। अब क्या हो गया? फेज शिफ्ट हो गया। दिस फेज शिफ्ट इज 180 डिग्री। म्यूचुअल इंडक्शन में रिमेंबर, जब आप एसी सर्किट्स पढ़ेंगे तब आप देखोगे। ट्रांसफार्मर की बात अगर करें, हाँ, आउटपुट में कभी भी यहाँ पर भी एक इंडक्टर लगा होता है, आउटपुट इनपुट फेज शिफ्ट की तरह 180। सो ट्रांसफार्मर की वजह से यहाँ पे, ट्रांसफार्मर की वजह से फेज शिफ्ट 180।
तो ओवरऑल शिफ्ट कितना हो रहा है 180 180 360 डिग्रीज, और यू कैन से 0 डिग्रीज। 360 इज इक्विवेलेंट टू 0। कहने का मतलब अगर आपने आउटपुट में ये साइकिल ले लिया, तो जो आप इनपुट में फीड कर रहे हो, क्योंकि फीडबैक मैकेनिज्म इट विल बी सेम। पॉजिटिव हाफ आपको आउटपुट में मिला, आप इनपुट में पॉजिटिव हाफ को वापस फीड करेंगे। आपको नेगेटिव हाफ मिला, आप नेगेटिव हाफ वापस फीड करेंगे। ठीक है, दिस फीडबैक इज कॉल्ड एज पॉजिटिव फीडबैक। क्या इसको बोलते हैं? ठीक है, कभी कभी आप ये देखो, एंड रिमेंबर पॉजिटिव फीडबैक इज ऑलवेज यूज्ड इन केस ऑफ एन ऑसिलेटर। जब भी आप ऑसिलेटर की बात करें, आप हमेशा पॉजिटिव फीडबैक को ही चाहते हैं। ठीक है, यानी कि आउटपुट इनपुट देयर मस्ट बी इन फेज, देयर शुड नॉट बी एनी फेज डिफरेंस। बट रिमेंबर व्हेन यू आर गोइंग फॉर एम्प्लीफिकेशन, गेन की बात जो आप करते हैं, वोल्टेज करंट एम्प्लीफिकेशन, पावर एम्प्लीफिकेशन, रिमेंबर तब आप नेगेटिव फीडबैक की बात करते हैं। किस फीडबैक की बात करते हैं? नेगेटिव फीडबैक का मतलब द फेज शिफ्ट इज 180 डिग्री, और हमने ये ऑलरेडी कॉमन एमिटर मोड में देखा था। That is why we were using common emitter mode most widely as compared to common base and common collector mode. ठीक है, this was all about the transistor as an oscillator, and I hope we are done with it. And the next lecture, of course, will be transistor as a switch, and then the logic gate.